Good morning and welcome back, students. So, our first chapter of discussion for class 6 science is chapter number 1, food. Where does it comes from? Okay, so if we talk about food, what is food? बेटा अगर हम food की बात करते हैं तो what is food? Food is a substance that required by humans and animals for survival and energy requirement. Food क्या है? I repeat again. Food is a substance that required by human and animal for survival and energy requirement. Means किसी भी living organism, हमारी बात नहीं है, किसी भी animal की भी बात करें अगर हम, तो food human beings as well as animals दोनों को requirement होती है किस चीज़ के लिए? For survival, जीने के लिए, और energy requirement, जैसे कि आपको running करनी है तो अगर आप 2 दिन से भूखे हैं तो क्या आप रनिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सर्वाइवल के लिए भी और एनर्जी के लिए भी फूड चाहिए। ओके, नाउ टर्म्स टू रिमेंबर। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो कुछ की टर्म्स हैं जिन पे अगर आप नज़र डालें तो वो है इंग्रेडिएंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स। सो इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल विच वी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ डिश। इंग्रेडिएंट्स क्या है बेटा? कोई भी मटेरियल जो हमें डिश बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि आपके घर पे आपकी मम्मा खीर बना रही हैं, सपोज दैट खीर बना रही हैं। ओके, सो आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, राइट? तो दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग अ डिश। मीन्स फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिश यू नीड इंग्रेडिएंट्स। वैसे ही अगर आपको कुछ और डिश बनानी है तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए। अब अगर हम यहीं से थोड़ा को रिलेट करें अपने चैप्टर को, तो इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आपने देखा राइस चाहिए, ठीक है। राइस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, हमें प्लांट से राइस मिल जाता है। अगर हम मिल्क की बात करें तो वो हमें किससे मिलता है? वो हमें मिलता है गाय से। सो गाय इज अ एनिमल, सो दैट इज एनिमल सोर्स, राइट। एंड सेकेंड टर्म इज सेरेल्स। If we talk about cereals, cereals means अनाज। edible grains, easiest definition अगर हम cereal की देखें तो that is edible grains, ऐसी चीज़ें जो हम, ऐसा अनाज जो हम खा सकें, that is cereals. Now third term is dairy products. So what are dairy products? नाम से ही समझ में आ गया आपको, जो डेयरी में मिले। Okay, so dairy products are generally milk product. If we talk about dairy product or we broadly discuss the dairy product, they are milk, ghee, cheese, butter. Okay, they are the dairy products. So our fourth term is autotrophs. What are autotrophs? Autotrophs, those organisms which make their own food in the presence of which make their own food. Okay, for example plants. Now if we talk about plants, plants अपना food खुद बनाते हैं। They do not depend on each other, they do not depend upon others for preparation of food, right? Means अगर हम autotrophs की बात करें तो they are make their own food, ठीक है, by the process of photosynthesis plants, right? raw materials होते हैं, for example कार्बन डाइऑक्साइड होता है, water होता है, in the presence of sunlight and chlorophyll they make their own food. So that is the via process called photosynthesis, and byproduct is oxygen and glucose. Okay, we further discuss the equation, and last term is heterotrophs. So what are heterotrophs? Heterotrophs, those depends upon other, for example deer. Okay, deer क्या है? अपना food खुद नहीं बनाते हैं, they depend upon other for food requirement, they are called heterotrophs, right? Okay, now if we come back what we discussed in chapter में हम क्या क्या देखेंगे? चैप्टर में हम देखेंगे फूड वैरायटी, इंग्रेडिएंट्स जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है हमारा फूड इंग्रेडिएंट्स, एंड अदर है हमारा सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है। अब अगर हम फूड वैरायटी की बात करें तो बेटा देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल एट योर होम, ठीक है। आपकी मम्मा डिफरेंट वैरायटी का फूड प्रिपेयर करती है, जैसे कि ब्रेकफास्ट के लिए कुछ और, लंच के लिए कुछ और, डिनर के लिए कुछ और। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट फूड वैरायटी, सो वी हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स
Okay, so if we talk about food variety, so we have three class: breakfast, second one is lunch, and third one is dinner. Okay, so in breakfast you eat, suppose that breads. Okay, you also eat oats, sometimes you also eat sprouts, right? But if we talk about lunch, lunch में आप सेम थिंग तो नहीं ले सकते ना जो आपने ब्रेकफास्ट में लिए, आपको कुछ डिफरेंट लेना है. सो यू ईट चपाती एंड वेजी, मीन्स सब्जी. ओके, नाउ if we talk about dinner, you eat light food like khichdi at all. Okay, so okay, so next term is ingredients. If we talk about ingredients, we already discussed there कि क्या होते हैं ingredients, materials which we required for preparing a dish. Okay, now if we talk about food ingredients, what are food ingredients? Food ingredients means जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए काम में आए. ठीक है, फूड इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखेंगे, एक हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, फूड इंग्रेडिएंट्स को कवर अप करेंगे. सपोज दैट यू मेकिंग अ वेजी. ओके, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है. जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है वो होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेजी. ओके, सपोज दैट बॉटल गार्ड. बॉटल गार्ड मीन्स लौकी बेटा. ओके, अगर आप लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए. सबसे पहले तो आपको लौकी ही चाहिए. सेकेंड थिंग इज ऑयल यू नीडेड. ओके, हीट ऑल्सो यू रिक्वायर्ड, मीन्स गैस सिलेंडर. So that is not the ingredient, oil ingredient and some spices. Okay, salt and last one is water. Okay, so if we talk about bottle guard, oil, heat, spices, salts and water, तो अब इसमें से हम देखें जो सब्जी है हमारी, मीन्स बॉटल गार्ड, वो क्या है, फूड इंग्रेडिएंट है प्लांट सोर्स का. ठीक है, और अगर हम ऑयल की बात करें तो दैट इज ऑल्सो अ प्लांट सोर्स फूड इंग्रेडिएंट. इफ वी टॉक अबाउट स्पाइसेस, दैट इज ऑल्सो फॉर फ्रॉम प्लांट. सॉल्ट इफ वी टॉक अबाउट, ऑल्सो इट्स ऑब्टेन फ्रॉम सी. ओके, हमें सी से मिलता है. जैसे कि आपको पता होगा, एक सॉल्ट की प्रोसेस देखते हैं. अगर हम बात करें 1 लीटर वाटर, ये एक बहुत नॉलेज वाली चीज़ है. 1 लीटर पानी से समुद्र के, मीन्स 1 लीटर सी वाटर को अगर हम प्रोसेस्ड करें तो 350 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट वी गेट. अगर हम 1 लीटर समुद्र के पानी को प्रोसेस करें तो हमें 350 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन होगा. ओके, फिर हम उसकी फर्दर प्रोसेस करके उसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. और आयोडीन तो आप लोग सभी जानते हैं कि इट मिक्स बाय द नेक्स्ट प्रोसेस. ठीक है, पूरा प्रोसेस प्यूरिफिकेशन करके फिर हम उसमें आयोडीन एड ऑन करते हैं. सो दैट इज द डिफरेंट टॉपिक, बट स्पाइसेस, सॉल्ट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट वाटर, वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम वेल्स. ओके, ओके, एंड लास्ट इज सोर्सेस ऑफ फूड. सो बेटा वी ब्रॉडली डिस्कस दैट टॉपिक, मीन्स ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है. व्हाट, सोर्सेस ऑफ फूड. अगर हम सोर्सेस की बात करें तो जैसे हमने अभी देखा, 2 सोर्स थे हमारे पास.
एक था हमारे पास प्लांट सोर्स था, एक था हमारे पास एनिमल सोर्स, ठीक है, एज वेल एज एनिमल। अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो उसमें क्या क्या है, उसमें हमारा है पल्सेस मीन्स दाल, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेकेंड वन इज सेरल्स मीन्स ग्रेन्स, ठीक है, अनाज। थर्ड वन इज फ्रूट्स, फोर्थ वन इज वेजिटेबल्स। तो बेटा अगर हम पल्सेस की बात करें तो आपने देखी होगी वैरायटी ऑफ पल्सेस आर अवेलेबल एट योर होम। अगर आपकी मम्मा दाल बनाती हैं तो जैसे कि आपने देखी होगी कभी वो येलो इन कलर होती है, कभी ब्लैक इन कलर, कभी ग्रीन इन कलर। सो व्हाट आर दे, क्या मम्मा कलर मिक्स करती है? नहीं, उनके खुद के नेचुरल कलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो आपने सुना होगा तुअर दाल, इट्स येलो इन कलर, ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट उड़द दाल, इट्स ब्लैक इन कलर, एंड मूंग दाल इज ग्रीन इन कलर। सो variety of pulses are available in market and also at your home, okay. If we talk about cereals, what are cereals? Grains। हमने पहले भी terms to remember में देखा था। cereals क्या होते हैं? edible grains। shortest definition of cereals are edible grains। If we talk about fruits, फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। आपने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाए होंगे जैसे कीवी, एप्पल, बनाना, पपाया, सभी आपको प्लांट से ही मिलते हैं, उनका कोई अदर सोर्स नहीं है, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो थोड़ा ये डिटेल में जाएगा, इसीलिए क्योंकि अगर वेजिटेबल आपने देखे होंगे, आपके घर पोटैटो होता है, ऑनियन भी होता है, ठीक है। आपने कभी खाने में गाजर, मूली सब कुछ खाया है, ठीक है। तो अगर हम पोटैटो की बात करें तो वो एक अलग क्लास में जाएगा, और अगर हम रेडिश की बात करें मीन्स मूली की, तो वो एक अलग जाएगा। कैसे? जो पोटैटो होता है, सपोज दैट, इसे मैं रफ कर देती हूँ, जो आपका पोटैटो होता है ये आपका प्लांट है, सपोज दैट ये आपका ट्री है। जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड फूड मीन्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। जो पोटैटो है वो स्टेम से बना है, ये स्टेम जब अंडरग्राउंड जाएगी तो ये पोटैटो का फॉर्मेशन करेगी और ऑनियन का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम रेडिश की बात करें तो ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ट्री है सपोज दैट, ठीक है, इसमें जब आप नीचे देखेंगे, अगर आपने कभी उगते हुए देखा हो रेडिश को या फिर बीट रूट को या फिर कैरेट को, तो वो क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट। जैसे ये रूट्स हैं, यहीं से आपके जो भी फ्रूट है या जो भी वेजिटेबल्स है उसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, पोटैटोज आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, ठीक है। ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है। और अगर हम रेडिश और कैरेट, बीट रूट, इन तीनों की बात करें, रेडिश, कैरेट एंड बीट रूट की अगर हम बात करें तो दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट, ओके। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। और अगर हम वेजिटेबल की और बात करें तो इसकी एक और क्लास है, जैसे कि अभी तो आपने रूट और स्टेम का एग्जाम्पल देखा, लीव्स भी हम खाने में काम में लेते हैं। जैसे कि अगर आप स्पिनच की बात करें, सो दैट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स। वो मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? लीव्स की, क्योंकि हम लीफ ही खा रहे हैं, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट। नाउ द थर्ड क्लास इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो प्लांट है वो उसका हम लीफ ही कंज्यूम कर लेते हैं एज अ वेजिटेबल, ठीक है। तो उसका हम लीफ को कंज्यूम करेंगे एज एन वेजिटेबल। जैसे कि आपने देखा होगा स्पिनच, मेथी, कोरिएंडर, धनिया पत्ती, वो भी लीफ है। तो इन्हें हम क्या, अब आपने एक डिश सुनी होगी सरसों का साग, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा? उसमें ये होता है, सपोज दैट ये मस्टर्ड, उसको इंग्लिश में मस्टर्ड बोलते हैं, आप सभी को पता है। उसके चौड़े पत्ते होते हैं, थोड़े से ब्रॉड लीव्स होती हैं उसकी। मस्टर्ड का प्लांट है,
इसमें क्या होता है कि जो ये लीव्स हैं इसे आप एज अ वेजिटेबल कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये थोड़ा मैच्योर होता है, तो इसके यहाँ पर सीड्स आते हैं, ठीक है। तो उन सीड्स को हम क्या करते हैं, ऑयल की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी जो सीड्स होती है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग ऑयल इंडस्ट्रीज़ में होती है और हम मस्टर्ड ऑयल ऑब्टेन करते हैं। किन से? मस्टर्ड के प्लांट की सीड से। सो अगर हम बात करें तो अभी हमने क्या देखा, वेजिटेबल्स में हमने देखा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट एंड थर्ड वन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। तो हमारी वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो बेटा कितने क्लास में चली गई? ये चली गई 3 क्लास में। तो हम अगर कोई हमसे पूछे कि आप वेजिटेबल्स के कौन कौन से फॉर्म कंज्यूम करते हैं, तो आप बोलेंगे वेजिटेबल्स के हम 3 फॉर्म्स कंज्यूम करते हैं, दैट इज रूट, सेकेंड वन इज स्टेम एंड थर्ड वन इज लीव्स। यहीं से आपके बेटा क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया कि पोटैटो इज modified form of what? Modified form of dash, for example fill in the blanks के लिए। तो आप क्या बताएंगे? Potato is modified form of stem, ठीक है, क्लियर, ओके। तो हमने अभी तक वेजिटेबल्स की 3 क्लासेस देखी, जिसमें हमने देखा रूट, स्टेम, लीव्स, मीन्स प्लांट्स modified by root, modified by stem and modified by leaves, okay. So okay, food obtained from plants में अगर हम आगे देखें, so there are 4 more things, that is oil seeds, sugar, tea and coffee and spices, okay. If we talk about oil seeds, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि मस्टर्ड की लीव्स को हम एज अ वेजिटेबल यूज़ कर लेते हैं, ओके, एंड उसकी जो सीड्स होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, ऑयल के फॉर्मेशन में ले लेते हैं, ओके। सो 2 वेराइटीज़ हो गई यहाँ पर हमारे पास। शुगर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि शुगर जो है वो किससे बनती है, शुगर केन से बनती है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, ओके। बट अगर आपसे पूछें, सो मॉडिफाइड फॉर्म, शुगर केन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम और रूट, सो व्हाट यू टोल्ड, यू जस्ट टोल्ड sugar cane is modified form of stem। किससे बनता है? stem से, form of stem, मतलब वो जो है वो एक modified form of stem है, ठीक है। now if we proceed on next point, that is tea and coffee। अगर हम टी एंड कॉफ़ी की बात करें, अर्ली मॉर्निंग बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ क्या चाहिए, चाय या कॉफ़ी। तो ऐसा क्या होता है चाय और कॉफ़ी में, ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो मतलब हमें एडिक्शन लगता है उस चीज़ का? कैफाइन नाम का एक सब्सटेंस होता है किसमें, टी और कॉफ़ी में, जिससे हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं कि नहीं, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिली तो वी कांट फील फ्रेश, ओके। सो इट वर्क्स एज एन स्टिमुलेंट। कौन? कैफाइन वर्क एज एन स्टिमुलेंट। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो यहाँ से बन सकता है, व्हाट इज कैफाइन? कैफाइन वर्क्स एज एन स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मतलब क्या होता है? उत्तेजक, मीन्स जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करे। इसलिए अर्ली मॉर्निंग बहुत से पर्सन्स और बहुत से पीपल्स क्या लेना पसंद करते हैं? टी और कॉफ़ी फॉर रिफ्रेशिंग माइंड। नाउ लास्ट टर्म इज स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं बेटा? स्पाइसेस मीन्स मसाले, ओके। वैरायटी ऑफ स्पाइसेस आर अवेलेबल इन योर मम्मा किचन, ओके, एंड वैरायटी ऑफ स्पाइसेस वी यूज डेली फॉर कुकिंग सब्जी, दाल और वेरियस टाइप्स ऑफ डिशेस, ओके। सो व्हाट वी डिस्कस इन दैट पैरा means previously we discussed cereal, pulses, vegetable and fruits, 4 things, and here we discuss 4 things more. What is this? Oil seeds, sugar, tea, coffee and spices. Sugar cane is a modified form of stem, okay. Sugar cane जो है वो एक modified form of stem है. And if we talk about caffeine,
कॉफ़ी और टी में क्या प्रेजेंट होता है? कैफाइन. व्हाट इट्स नोन एज स्टिमुलेंट. मीन्स किस चीज़ का काम करता है वो? एज एन स्टिमुलेंट वर्क करता है, आपको स्टिमुलेट कर देता है, आपको उत्तेजित कर देता है और एनर्जाइज कर देता है. इसलिए मॉर्निंग में हमें टी कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, जो हमें रिफ़्रेश करती है. और स्पाइसेस की अगर हम बात करें तो वेराइटी ऑफ स्पाइसेस मीन्स मसाले आर अवेलेबल इन योर किचन. ओके, नाउ इफ वी प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड मटेरियल दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. मीन्स हमें कौन कौन से फूड मटेरियल्स एनिमल्स से मिलते हैं? तो वो हैं चीज़, मिल्क, एग, बटर, हनी, मीट, फिश. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट, दे आर द मटेरियल दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. इसमें एक टर्म है दैट इज मिल्चिंग एनिमल्स. व्हाट डू यू मीन बाय मिल्चिंग एनिमल्स? एनीवन? ओके, सो मिल्चिंग एनिमल्स आर also known as milk yielding animals. Means ऐसे एनिमल्स जो आपको मिल्क प्रोवाइड करें या जिनसे आपको मिल्क ऑब्टेन हो, दे आर कॉल्ड मिल्चिंग एनिमल्स. अगर हम मिल्चिंग एनिमल्स की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? उसमें आ जाएगा काऊ, गोट, sheep, buffalo, etc. Okay, as we all know, cheese, butter and paneer, all these things are obtained from milk. Okay, and ghee also. So and if we talk about egg, meat, from where it obtained? It obtained from chickens or hens. Okay, and the third one thing is fish. You already known from where it obtained. It obtained from sea or rivers. Okay, and if we talk about the iodine content availability in fish, आपको पता है फिश में भी आयोडीन की क्वांटिटी होती है. कैसे होती है वो? फिश में आयोडीन की क्वांटिटी कैसे होती है? सपोज दैट एक फिश है, ओके, वो दो जगह रहेगी, या तो वो रहेगी रिवर में या रहेगी सी में. तो अगर वो रिवर में रहती है तो क्या उसकी बॉडी में आयोडीन की कंटेंट होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि सी वाटर में सबसे ज़्यादा फॉर्म में आयोडीन होता है. ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ आयोडीन फिश में कहाँ रहेगी? सी में. ठीक है. नाउ अब वैरायटी ऑफ फूड्स की बात हो गई, वैरायटी ऑफ एनिमल्स की बात हो गई. एक लास्ट थिंग और है हनी. ये भी एक एनिमल सोर्स है. ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है बीज से. बीज क्या करती हैं? फ्लावर्स का जूस लाती हैं और अपने बी हाइव्स में ले जाकर सबमिट करती हैं. ठीक है, जैसे आप असाइनमेंट लाके टीचर को सबमिट करते हैं तो वो एक असाइनमेंट का स्टॉक होता है हमारे पास. वैसे ही अगर हम हनी की बात करें तो बीज क्या करती हैं? फ्लावर का जूस लेकर आती हैं और उसे क्या करती हैं? बी हाइव में डिपॉजिट करती हैं. ओके, नाउ अब अगर हम बात करें तो हमारे फूड मटेरियल की बात हो गई, सोर्सेज की बात हो गई, फूड वैरायटी की बात हो गई, हमने इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए, मिल्चिंग एनिमल्स भी देख लिए, हमने ये भी देख लिया कि एग का सोर्स क्या है, मीट का सोर्स क्या है, हनी का सोर्स क्या है. ओके, और वैरायटी ऑफ जो सब्स्टिट्यूट्स हैं आपके मिल्क के, जैसे कि चीज़ हैं, बटर हैं, ये सब कुछ है, ये इनका सोर्स क्या है. बट अब अगर हम बात करें तो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों फूड कंज्यूम करते हैं.
So on the basis of consumption of food, okay, on the basis of consumption of food, there are 3 classes of heterotrophs. जैसे कि हमने टर्म्स टू रिमेंबर में, अगर आपको बात याद हो यहाँ पर जो की थी, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स की. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करें, मीन्स ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ओके. और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड हो. तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड, फूड के कंजप्शन के बेसिस पे, आप में से बहुत से लोग वेजिटेरियन है और बहुत से नॉन वेजिटेरियन है. ठीक है. तो अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें, ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें ह्यूमन का, तो वो कैसे कैसे होंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड, हेटेरोट्रॉप्स क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास. कितनी क्लासेस में बांटा गया है हेटेरोट्रॉप्स को? 3 क्लासेस में. फर्स्ट इज हर्बीवोरस, ओके. सेकंड इज कार्निवोरस, and last is omnivores. Okay. So if we talk about herbivores, as you all know, herbivores are only plant eaters. means herbivores क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड. तो अगर हम herbivores की बात करें, दे आर जनरली प्लांट ईटर्स. इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा काऊ आ जाएगी, ओके, डियर आ जाएगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं? दे आर जनरली ओनली मीट ईटर्स. दे आर ओनली मीट ईटर्स. ओके. And if we talk about omnivores, they are both plant as well as animal eaters. तो ये क्या करते हैं? ये दोनों चीज़ को कंज्यूम करते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स बोथ. ओके. So if we talk about the examples of herbivores are cow, deer. If we talk about carnivores example, that is lion. Okay. And if we talk about the example of omnivorous, that is dog. Okay. So beta, I hope it is clear to you. Now the last topic is food chain. Okay. The last topic of your chapter is food chain. What do you mean by food chain? So food chain we described as food chain, the sequence of organism, okay, the sequence by which one organism consume another for requirement of energy. Means sequence by which an organism consume one to other. Okay. So that is called food chain. If we simple talk, grass eaten by grasshopper is eaten by frog, and frog is eaten by lastly snake. So what we discussed today? We discuss about the ingredients, okay, food variety, sources of food, that is plant source and animal source, and on the basis of food eating we classify heterotrophs in 3 classes, that is omnivorous, carnivorous and herbivorous, and last topic is food chain. So I hope all you understand very well. Thank you so much.